Hello everyone, I am here back again with another video of class 6, and in this video I will be teaching you SST, and the chapter is chapter 2nd of civic geography section, that is the meridians or longitude. This is the second part of the video of this chapter. In the earlier part we have read about the latitudes and the parallels, and we have read about the latitudes and parallels. This chapter is longitudes and latitudes. Alright, the chapter name is longitudes and latitudes. So in this part we will be studying about the meridians or longitudes. Alright, so let's start this video, and before starting the video I would like to request you that if you like this video, please subscribe this channel, which is Study Treat, and do like the video and share it as much as you can. And do not forget to press the bell icon so that you can get the latest notifications of our latest videos and you can watch it. So let's start with the meridians or longitudes. In the earlier part we have read about the parallels, which is like this, or it is also known as latitudes. Alright, and we have read that there are 181 latitudes including the equator. This is the equator part, and there are other important latitudes as well, such as the Tropic of Cancer, that is situated at 23.5 degrees, and Tropic of Capricorn, that is situated in the southern hemisphere at 23.5 degrees south. Similarly, we have studied Tropic of Arctic Circle in the north and Antarctic Circle in the south, and the North Pole and the South Pole. Alright, so now in this we will be studying about lines which are vertically passing from north to south. This is from north to south, and now we will study the lines which pass from east to west. Alright. Yeah. So the equator is used as a line of reference for locating places in the north and south directions. Yeah. Means the equator जो है इसको रेफरेंस में हम लोग लेते हैं डायरेक्शंस को नॉर्थ एंड साउथ में फाइंड करने के लिए. Similarly, we need another line or point as reference for locating places in the east and west directions. उसी तरह जिस तरह नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए हमें इक्वेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसी तरह ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शंस को भी फाइंड करने के लिए जो है हमें कुछ लाइंस की जरूरत पड़ती है, और वो जो है इमेजिनरी लाइंस होती हैं. These lines are called meridians or lines of longitude, और जिस लाइंस का इस्तेमाल हम लोग ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए करते हैं उसको हम बोलते हैं मेरिडियंस और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट, how this line equator has been created as a central part of the earth. Similarly, we have a central part of the earth in the form of longitudes as well. Let's look at here. यहाँ देखते हैं, in 1884 some countries mutually agreed to fix Greenwich, a place few kilometers east of London in UK, as the starting point for the meridians. मतलब कि 1884 में जो है कुछ कंट्रीज ने जो है आपस में सहमति रखकर जो है एक पॉइंट या जिसका एक जगह है ग्रीनविच, जो कि लंदन से कुछ दूरी पे है, ठीक है, उसको जो है स्टार्टिंग पॉइंट मारता मेरिडियंस का या फिर लॉन्गिट्यूड्स का. ठीक है, जिस तरह इक्वेटर को दोनों पार्ट्स में डिवाइड करके माना गया है, उसी तरह ग्रीनविच को जो है कुछ कंट्रीज ने आपस में मिलकर जो है सहमति रखी थी कि ग्रीनविच को जो है हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे मेरिडियंस का. क्लियर? द मेरिडियंस व्हिच पासेस थ्रू ग्रीनविच वाज टेकन एज प्राइम मेरिडियंस, यानी कि जो मेरिडियन ग्रीनविच से पास करता है उसको जो है प्राइम मेरिडियन कहा जाता है. जिस तरह नॉर्थ एंड साउथ के लिए इक्वेटर का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह जो है ग्रीनविच से जो लाइन पास होती है, इमेजिनरी लाइन, यानी कि जो मेरिडियन पास होती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम
मेरिडियन। ऑलराइट, जैसे कि यहाँ पर है, मान लो ये अर्थ है और ये तुम्हारा ग्रीनविच है, तो ये जो है इसको जो है स्टार्टिंग पॉइंट माना गया था मेरिडियंस का, और इसको जो है प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। बाकी लाइन जो है ऐसे ड्रॉ रखी है साथ साथ इसके। Here, the distance of a place east or west of the prime meridian is measured as an angle, और जो डिस्टेंस है किसी प्लेस का ईस्ट में या फिर वेस्ट में, ये मान लो ग्रीनविच है, ये पी है प्राइम मेरिडियन है, तो ये इसका वेस्ट हो जाएगा और ये इसका ईस्ट हो जाएगा। क्लियर? तो उसको जो है एंगल से मेजर किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूं, ये अगर 3D में बनता तो आप लोग समझ आता है, 2D में जो बनाना काफी मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो जो भी लाइंस, जो भी डिस्टेंस जो है ईस्ट और वेस्ट में जब हम लोग बढ़ते हैं प्राइम मेरिडियन के, तो उसको एक एंगल के फॉर्म में मेजर किया जाता है। दिस एंगल इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट प्लेस, और वही जो एंगल है लॉन्गिट्यूड, उस प्लेस का लॉन्गिट्यूड माना जाता है। क्लियर? जैसे कि मान लो ये 0 डिग्री पे प्राइम मेरिडियन जो है 0 डिग्री माना जाता है। क्लियर? अगर हम लोग इधर बढ़ेंगे तो कुछ डिग्री बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे ईस्ट में तो कुछ डिग्री हम लोग बढ़ेंगे ईस्ट में, और कुछ डिग्री जो है हम लोग वेस्ट में बढ़ेंगे, तो उसी से जो उसका एंगल मेजर किया जाता है। क्लियर? द प्राइम मेरिडियन एज द स्टार्टिंग पॉइंट मेरिडियन इज मार्क्ड एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और जो हमारा प्राइम मेरिडियन है जो ग्रीनविच से पास होता है उसको जो है 0 डिग्री माना जाता है। क्लियर? तो एक बार देख लेते हैं कि जो इक्वेटर है वो हमारा लाइन ऑफ रेफरेंस का इस्तेमाल किया जाता है हमारे नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए। क्लियर? यानी कि इक्वेटर जो है वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस को नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस के प्लेसेस को फाइंड करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसी तरह ईस्ट और वेस्ट में भी जो है एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए हमें, जिसमें ताकि हम लोग जो है प्लेसेस को मार्क कर सके, और उसी प्लेस को जो है मेरिडियन और लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। और हमारा जो 1884 में जो हुआ था कि कुछ कंट्रीज जो है आपस में मिलकर सहमति रखकर जो है उन्होंने ग्रीनविच, जो कि एक जगह है हमारे लंदन में, उसको रखा था तुम्हारा सेंट्रल पॉइंट, यानी कि प्राइम मेरिडियन उसको माना गया था, और उसको जो है 0 डिग्री माना गया। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग। ऑलराइट, नाउ वी नो दैट द प्राइम मेरिडियन इज टेकन एज 0 डिग्री। ठीक है, हम लोग प्राइम मेरिडियन को जो है 0 डिग्री लेते हैं, तो टोटल जो है हमारे अर्थ पे कुल 180 जो है हमारे मेरिडियंस ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि इसके इधर जो है वेस्ट में वो 180 मेरिडियंस है, और इधर जो है 180 मेरिडियंस है वेस्ट में। ठीक है, तो टोटल जो हमारे मेरिडियंस है टोटल हमारे अर्थ पे वो है 360। ऑलराइट, और हम जानते हैं कि जो अर्थ जो रोटेट करता है हमारा वेस्ट टू ईस्ट में, तो वो 24 घंटे में जो है वो 360 डिग्रीज कंप्लीट करता है। तो 180 इधर है और 180 मेरिडियंस इधर है, टोटल जो है हमारे कितने हुए, हमारे हो गए 360 मेरिडियंस ऑन द अर्थ। जिस तरह से हमारा लैटिट्यूड था, जो पैरेलल था वो 80 थे, 181 थे, उसी तरह हमारा जो लैटिट्यूड्स है, लॉन्गिट्यूड्स है, वो कितने टोटल, वो है टोटल हमारे 360। क्लियर? तो आइए देखते हैं हम कुछ फीचर्स हमारे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे मेरिडियंस के जो कि हमारे अर्थ में है, क्या शो करते हैं। द लेंथ ऑफ ऑल द मेरिडियंस आर सेम एज ईच वन इज अ सेमी सर्कल, यानी कि हमारे अर्थ में जितने भी लॉन्गिट्यूड्स है, अभी जितने मेरिडियंस है, वो सारे सेम लेंथ के होते हैं। ठीक है, सारे सेम लेंथ के होते हैं, क्योंकि वो एक सेमी सर्कल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मान लो ये हमारा एक है, ये मान लो हमारा ये हमारा मेरिडियन है। ठीक है, तो ये एक सेमी सर्कल फॉर्म कर रहा है। अगर ये पूरा ऐसे चला जाता उधर से उस साइड से, तो ये पूरा सर्कल बन जाता। क्लियर? कैसे दिखाऊं मैं तुम लोगों को, मान लो ये तुम्हारा नॉर्थ पोल है, ये तुम्हारा साउथ पोल। ठीक है, उस साइड में तो सारे इक्वेटर, सारे जो मेरिडियंस है वो ऐसे ही यहाँ पे मिलते हैं।
ठीक है, ये तुम्हारा पॉइंट है और इधर तुम्हारा दूसरे साइड में साउथ पॉइंट है, ठीक है, साउथ पोल है। तो जितने मेरिडियंस हमारे वो सारे जो है एक लेंथ के बराबर होते हैं, दोनों यानी सारे मेरिडियंस की लंबाई जो है वो सेम होती है, क्लियर। और सिर्फ अगर इस डायरेक्शन को लिया जाए तो एक सेमी सर्कल फॉर्म करेगा, और ईस्ट और वेस्ट दोनों ले लिया जाए तो वो पूरा का पूरा जैसे ये है, फॉर एग्जाम्पल इसको मान लो ये जो है, क्लियर। तो पूरा का पूरा जो है अगर इस डायरेक्शन को भी ले ले और वेस्ट डायरेक्शन को भी ले ले तो पूरा का पूरा जो है वो 360 डिग्री का यानी कि पूरा कंप्लीट सर्कल फॉर्म करता है, क्लियर। द एनी टू अपोजिट मेरिडियंस व्हिच टेकन टुगेदर फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल, यानी कि अगर हम लोग मान लो ये वाला लिया है मैंने 0 डिग्री का, ठीक है, और अगर पीछे वाले साइड में ले लिया जाए तो पूरा का पूरा जो है कंप्लीट सर्कल फॉर्म करता है, यानी कि ऑपोजिट जो मेरिडियंस होते हैं अगर ऑपोजिट मेरिडियंस को मिला दिया जाए तो वो एक कंप्लीट सर्कल का फॉर्मेशन करते हैं, क्लियर। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस इज अबाउट 111 किलोमीटर्स फॉर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी कि क्योंकि एक जो मेरिडियन है ईस्ट में वो 180 डिग्री का फॉर्मेशन करता है, क्लियर। तो 1 डिग्री का जो होता है हमारा जो डिस्टेंस होता है 1 डिग्री का, दो मेरिडियंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है 1 डिग्री का, वो जो है करीब करीब 111 किलोमीटर का होता है। जिस तरह हमारे लैटिट्यूड्स में था, जिस तरह हमारा पैरेलल्स में था कि 1 डिग्री का डिस्टेंस जो है वो हमारा 111 किलोमीटर का होता है, उसी तरह हमारे लॉन्गिट्यूड में भी है कि 1 किलोमीटर का जो 111 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 1 डिग्री के बराबर होता है लॉन्गिट्यूड्स में, क्लियर। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, ठीक है। और सारे इक्वेटर्स जो है वो सारे मेरिडियंस जो है वो पोल्स पे मिलते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है, ये तुम्हारा नॉर्थ पोल है। तो जो मेरिडियंस को अगर हम लोग देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल देखो ये जैसे सर्कल है, ये होता है, ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, इक्वेटर है, क्लियर। तो और ये हमारा मेरिडियंस है, ये क्या है, हमारा मेरिडियन है। तो अब देखो यहाँ पे जो ये जो इक्वेटर है हमारा, यहाँ पे दो डिस्टेंस कितना है, जो जब इक्वेटर के पास है ये मेरिडियन तो डिस्टेंस काफी ज्यादा है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो डिस्टेंस जो है ये कम होता जाता है, यानी कि ये कह रहा है कि जैसे जो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस इज अबाउट, ये हो गया तो डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस डिक्रीज, यानी कि जैसे डिस्टेंस जो है दो मेरिडियन के बीच में वो डिक्रीज होता रहता है, जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ की तरफ या इक्वेटर की तरफ साउथ, इक्वेटर से साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो मेरिडियंस का जो डिस्टेंस मेरिडियंस का वो कम होता जाता है। जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा है और यहाँ पे बहुत कम है, यानी कि जैसे हम लोग पोल्स की तरफ बढ़ेंगे तो दो मेरिडियंस का डिस्टेंस जो है कम होता जाता है और पोल्स में जो है वो पूरा का पूरा एक पॉइंट बन जाता है। उसी तरह साउथ में आओगे तो पोल्स का जो हमारा मेरिडियंस का डिस्टेंस है वो कम होता जाता है, जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे या फिर साउथ की तरफ बढ़ेंगे। तो ऑल द मेरिडियंस मीट एट पोल्स, यानी कि सारे मेरिडियंस जो है वो नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे हमेशा मिलते हैं, क्लियर। ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज 180 डिग्री ईस्ट इज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेयरएज वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज 180 डिग्री वेस्ट इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि यहां से लेकर अगर यहाँ पूरे हम लोग एक कंप्लीट आधा सर्कल हम लोग आधा अगर अर्थ पूरा करें हम लोग तो 180 डिग्री जाता है वो, और उसी तरह ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 डिग्री ईस्ट जाएगा और उसी तरह जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर और प्राइम मेरिडियन के वेस्ट की तरफ हो जाएगा हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज 180 डिग्री ईस्ट, यानी कि ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 180 डिग्री ईस्ट हो जाएगा जो कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। उसी तरह वेस्टर्न वेस्ट की तरफ जाएंगे, वो वेस्ट की तरफ 180 डिग्री वेस्ट जाएंगे तो हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाता है, क्लियर। तो हमेशा जो है हम लोग डिग्रीज में मेजर करते हैं लॉन्गिट्यूड्स को। इस ग्रीनविच यानी जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन से हम लोग 5 डिग्री भी जाते हैं, 5 डिग्री वेस्ट में जाते हैं, 5 डिग्री ईस्ट जाते हैं, तो हमेशा जो है वहां पे हम लोग डिग्रीज और डायरेक्शंस का हमेशा वहां पे मेंशन करेंगे। जैसे कि मान लो ये प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, मैं यहां से इधर गया वेस्ट की तरफ, तो मान लो मैं गया 60 डिग्री तो वेस्ट और इधर गया मान लो तो 60 डिग्री ईस्ट,
तो हमेशा जो है डायरेक्शन और डिग्री को हमेशा मेंशन करेंगे हम लोग। क्लियर? तो ये सब फीचर्स हमारे लॉन्गिट्यूड्स के यानी कि मेरिडियंस के। ठीक है, आप या इसको याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे प्लीज जो है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ताकि मैं आपके डाउट्स आपके क्लियर कर सकूं। और आपको इस चैप्टर का पीडीएफ मिलेगा, तो आप इस चैप्टर को जो है रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाएंगे सिंसियरली जो है आप उसको फिर कॉपी में उसको नोट डाउन करिएगा। और हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप वीडियो देखें तो स्टार्टिंग जरूर लिखें वहां पे कमेंट सेक्शन में, और जब एंड करें तो वहां पे एंड जरूर लिखें। अपना नाम जो है जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, ताकि हम लोग को पता चल सके कि आप लोग जो है कनेक्टेड है हमसे। और सैटरडे को जो है टेस्ट होने वाला है, तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, जो भी चैप्टर सब तक पढ़ाया गया है। क्लियर? तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक्स अपने इस चैप्टर के। और सो नाउ इन दिस टॉपिक वी विल बी स्टडीइंग अबाउट हाउ टू फाइंड द लोकल टाइम ऑफ प्लेस। ऑलराइट, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट यूजिंग एन एग्जांपल। ठीक है, तो इस कांसेप्ट को जो है लोकल टाइम कांसेप्ट को जो है हम एक एग्जांपल से देखेंगे। उससे पहले ये जान ले कि हमारा अर्थ जो है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमता है। क्लियर? वेस्ट टू ईस्ट। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे वो 24 से 360 को, तो कितना 15 डिग्री जो है वो 1 आवर में जो है 15 डिग्री घूमता है। और 4 मिनट में उसी तरह जो है 1 डिग्री जो है हमारा अर्थ रोटेट करता है, यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री जो है हमारा अर्थ रोटेट करता है। अब आइए देखते हैं। There are two places A and B located at 60 डिग्री ईस्ट, यानी कि A जो है वो 60 डिग्री ईस्ट में है एंड 60 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, और एक B है हमारा जो कि वेस्ट में है 60 डिग्री वेस्ट। द टाइम एट प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच इज एट 12 नून, यानी कि जो ग्रीनविच का जो हमारा टाइम है जो कि 0 डिग्री पे है, वहां पे हमारा फिलहाल 12 बज रहा है। ठीक है जी, वहां पे हमारा 12 बजे दोपहर है। अब फाइंड करते हैं हम लोग ए एंड बी का टाइम। क्लियर? ए और बी का टाइम जो है हम फाइंड करेंगे। द डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बिटवीन ए एंड प्राइम मेरिडियन इज 60 डिग्रीज टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि जो ये डिस्टेंस है वो 60 डिग्रीज का हमारा डिस्टेंस है ए से और ग्रीनविच मेरिडियन का टाइम। क्लियर? Therefore, the difference between time A and prime meridian is 60 into 4, that is 240 minutes, यानी कि 1 मिनट में जो है 4 एक मिनट में जो 1 डिग्री में जो है 4 मिनट होता है। वहां पे लिखा हुआ है 1 डिग्री में जो 4 मिनट होता है। तो उसी तरह 60 डिग्री में कितना हो गया? 60 into 4 इक्वल टू 240 मिनट्स, यानी कि 60 डिग्री का डिस्टेंस है, तो कितना हो गया 60 into 4, यानी कि 240 मिनट्स या फिर 4 आवर्स। क्लियर? As A is located towards east of the prime meridian, the local time at A will be 4 hours ahead of the Greenwich meridian time. अब क्योंकि A जो है हमारा ईस्ट में लोकेटेड है ग्रीनविच के, तो जो हमारा डिस्टेंस होगा A पे वो कितना होगा 4 आवर्स अहेड होगा GMT के, यानी 4 आवर्स होगा GMT के अहेड होगा। Clear? Therefore, the local time at A will be 4 hours ahead of the Greenwich meridian time, that is 4 PM. तो क्योंकि 60 डिग्री जो है हमारा दूरी है और 1 डिग्री में जो 4 मिनट होता है, तो इसलिए जो है 240 मिनट्स या फिर 4 घंटे का समय जो है हमारे 60 डिग्री पे पड़ता है इसमें। और क्योंकि ईस्ट हमारा आगे है, ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन से आगे है, इसीलिए जो है वहां पे 4 घंटे अहेड होगा, यानी कि जो प्लेस ए है वो 4 घंटे अहेड होगा हमारे ग्रीनविच से। अब उसी तरह बात की जाए हमारे वेस्ट की, तो सेम चीज इसमें भी है, बट इसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज है। वो कहां पे हमारा वो वेस्ट में है, तो 4 घंटे जो है वेस्ट में हमारा पीछे हो जाएगा, यानी कि कितना बजेगा 8 बजेगा उस समय सुबह में, यानी कि यहाँ पे जो है बीच में यहाँ पे 4 घंटे, यहाँ पे भी 60 डिग्री का है, तो 4 घंटे क्योंकि वेस्ट में है तो 4 घंटे पीछे हो जाएगा, और ये ईस्ट में 4 घंटे आगे हो गया, तो वो 4 घंटे आगे हो गया 12 से 4, यानी कि 4 बज गया शाम। और यहाँ पे जो है 4 घंटे पीछे है, तो यहाँ पे सुबह हो रहा होगा 8 बजे, तो बी का जो सुबह 8 बज रहा होगा 8 AM। और वही अगर बात की जाए ईस्ट की, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 4 PM। और ये जो हमारा ग्रीनविच जो है वो कितना वहां पे 12 फिलहाल बज रहा है, तो 4 घंटे पीछे यहाँ पे 8 AM और 4 घंटे आगे ए पे, यानी कि 4 PM। तो ये ऐसे जो है हम लोग किसी भी लोकेशन का या किसी भी प्लेस का हम लोग टाइम जो है फाइंड करते हैं इसी तरह से। क्लियर?
तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो है हम लोग किसी भी एक जगह का टाइम लोकेट करते हैं, वहां का लोकल टाइम। आइए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। अगर कोई भी टॉपिक्स में दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। कंट्री जो है अगर अपना अलग अलग, जैसे ग्रीनविच को माना गया है सहमति से कि वो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम यानी कि GMT माना जाएगा, वो एक प्राइम मेरिडियन माना जाएगा वहां पे, ठीक है, ग्रीनविच में। तो वो उसी के हिसाब से जो है अगर अलग अलग कंट्री जो है अगर अलग अलग अपना, जैसे ग्रीनविच को माना गया है एक सेंट्रल टाइम, ठीक है, अगर अलग अलग कंट्रीज अपना अलग अलग ऐसे मानने लग जाए अपने टाइम को, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो फंक्शनिंग है रेलवेज का, एयरवेज का, उससे काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। अगर मान लो जैसे ग्रीनविच लंदन में जो है वहां पे सेंट्रल प्राइम मेरिडियन माना गया है 0 डिग्री पे, अगर USA भी अपना 0 डिग्री मान ले, रसिया भी अपनी 0 डिग्री मान ले, पाकिस्तान अपनी 0 डिग्री मान ले, इंडिया अगर अपनी 0 डिग्री मान ले, तो वहां से जो है टाइम को कोऑर्डिनेट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। क्योंकि जो रेलवेज होता है, जाहिर सी बात है कि वो ऐसा तो है नहीं कि वो, क्योंकि 4 मिनट में 1 डिग्री कवर करना होता है, तो जाहिर सी बात है कि जो रेलवेज है और जो एयरवेज है उनको बहुत सारे मेरिडियंस को पास करना पड़ता है। अगर सारे कंट्रीज जो अपना अपना मेरिडियंस रखने लग जाए तो उससे काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो है एक स्टैंडर्ड मेरिडियन का इस्तेमाल किया जाता है अपने अपने कंट्रीज के लिए, ठीक है। ग्रीनविच तो मेन प्राइम मेरिडियन है, उसी तरह अलग अलग कंट्रीज जो है अपने अलग अलग स्टैंडर्ड मेरिडियंस को मानती हैं, ठीक है। और उसका जो स्टैंडर्ड मेरिडियन का जो कंपैरिजन है वो तुम्हारा ग्रीनविच जो कि 0 डिग्री पड़ता है उससे कंपैरिजन उसको किया जाता है, क्लियर। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो एक अपने कंट्री का एक अपना अलग मेरिडियन होता है जिससे वो अपने कंट्री का टाइम टेबल सेट करते हैं, टाइमिंग सेट करते हैं, क्लियर। जैसे इंडिया की बात की जाए तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज एट 82 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी कि अगर ग्रीनविच से मान लो ये ग्रीनविच है और यहाँ पे इंडिया है तुम्हारा, ठीक है। तो यहां से लेकर जो ये मेरिडियन पास होता है हमारा, ठीक है, वो जो है कितना पड़ता है 82.5 डिग्री ईस्ट में पड़ता है, क्योंकि ये तो 0 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा वेस्ट पड़ जाता है इधर, और ये तुम्हारा इधर ईस्ट पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो है जो ये है हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड विच पासेस थ्रू इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद से जो है हमारा ये जो लैटिट्यूड है, ये जो लॉन्गिट्यूड है हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट, वो जो है इलाहाबाद से पास होता है। और ये जो डिस्टेंस है ये ग्रीनविच से लेकर यहाँ तक माना गया है, ये कितना है 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी कि ये वाला जो ग्रीन मेरिडियन है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ग्रीनविच एंड 82.5 डिग्री ईस्ट इज 5 hours and 30 minutes। तो अगर कंपैरिजन किया जाए इन दोनों के बीच में तो कितने घंटे का डिस्टेंस बनता है। जिस तरह हमने देखा 60 डिग्री, अभी हमने पढ़ा था 60 डिग्री में जो है 4 घंटे का फर्क पड़ता है 60 डिग्री में। उसी तरह अगर इसको मेजर करेंगे तो कितना पड़ जाएगा हमारा 5 hours 30 minutes, ठीक है। तो ग्रीनविच 0 डिग्री से लेकर 82.5 डिग्री के बीच में जो है 5 hours 30 minutes का गैप होता है। As the standard meridian of India is towards the east of the prime meridian, the standard time of India is 5 hours 30 minutes ahead of GMT। यानी कि क्योंकि जो है हमारा इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो कि इलाहाबाद से पास होता है, ठीक है, वो जो हमारे पास होता है वो क्या होता है कि वो ईस्ट में है, ठीक है। और हमने अभी पढ़ा था कि जो ईस्ट वाले जितने भी ईस्ट में डायरेक्शंस होते हैं ग्रीनविच से, वो अहेड होते हैं हमारे ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से। तो क्योंकि हमारा इंडिया का जो मेरिडियन है स्टैंडर्ड मेरिडियन वो हमारा 82.5 डिग्रीज पे है, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट्स अहेड है, ईस्ट में है। इसलिए जो है हमारे इंडिया का टाइम जो है यहां से अगर कंपैरिजन किया जाए तो 5 घंटे 30 मिनट अहेड यानी कि प्लस में देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मान लो 4 बज रहा है, 4 PM हो रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ग्रीनविच में अगर 4 बज रहा है तो 5 घंटे और 5-5.5 घंटे और ऐड कर दो, तो कितना होगा 9:30 बज रहा होगा यहाँ पे। उसी तरह जिस तरह इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन सेट किया गया है, अलग अलग कंट्रीज का जो है अलग अलग मेरिडियन सेट किया जाता है ताकि
उसको, ताकि ग्रीनविच से कंपैरिजन करके उसको जो है एक पर्टिकुलर टाइम सेट किया जा सके, ताकि रेलवेज और एयरवेज को कोई दिक्कत ना हो टाइमिंग्स में। क्लियर? मान लो जैसे इंडिया है और पाकिस्तान का जो है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पे उसका थोड़ा डिस्टेंस कम है, ठीक है, यानी कि ईस्ट में वो भी है, बट ये जो डिग्री की डिफरेंस है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे पाकिस्तान देखा जाए तो पाकिस्तान में 4 घंटे का डिफरेंस माना जाता है, यानी कि यहाँ पे अगर 4 हो रहा होगा तो वहां पे हो रहा होगा 8। उसी तरह अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग है और उसको कंपेरिजन किया जाता है हमारे जीएमटी के टाइम से। क्लियर? और उससे हमारे टाइम जोन को जो है हमारा कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और आईएसटी। क्लियर? तो जो हमारा 82.5 डिग्री इस पे जो सिचुएटेड है हमारा मेरिडियन, वो कितने घंटे दूरी पे है? वो 5 घंटे 5.5 घंटे की दूरी पर है, और वो अहेड, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में हमारा इंडिया ग्रीनविच से, तो हमारे इंडिया का टाइम जो है 5 घंटे 5.5 घंटे आगे चला जाता है, यानी कि जो टाइम मेरिडियन पे हो रहा होगा, ग्रीनविच पे टाइम हो रहा होगा, उससे 4 घंटे और 5.5 घंटे और प्लस कर दो। क्लियर? तो वो जो स्टैंडर्ड टाइम है हमारे इंडिया का यहाँ पे, वो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या फिर आईएसटी कहलाता है। क्लियर? तो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्लास टॉपिक बढ़ते हैं अपना टाइम जोन्स। ऑलराइट, सो नाउ वी आर मूविंग टू आवर टाइम जोन्स टॉपिक। ठीक है, in 1884, the International Prime Meridian Conference agreed to divide the world into 24 time zones। यानी कि जो 1884 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1884 में, उसने जो वहां पर डिसाइड हुआ था कि अर्थ जो है टोटल 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया जाएगा। Each zone is a narrow belt running from north to south with an east-west section of 15 डिग्री longitudes। और वो जो टाइम जोन होता है वो हमारा नैरो बेल्ट होता है जो कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड माना जाता है, जो कि 15 डिग्री के डिफरेंस में सिचुएटेड होता है जो टाइम जोन्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये हमारा अर्थ, ये हमारा वर्ल्ड है, तो अलग अलग जो टाइम जोन्स है वो अलग अलग इस तरह से जो है मार्क किया गया है 15 डिग्री के गैप में। तो ऐसे जो है 24 हमारे टाइम जोन्स हमारे पूरे वर्ल्ड के क्रिएटेड किए गए हैं। अब किसी किसी में जो है कंट्री जो छोटी होती है, ठीक है, उसमें एक ही टाइम जोन आता है, और कई कई कंट्री जैसे रशिया हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, वो बहुत बड़ी कंट्री है, तो उसमें जो है एक से ज्यादा टाइम जोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वहां पे क्योंकि उन कंट्रीज में जो है एक टाइम जोन्स को बनाना काफी मुश्किल पड़ जाता है, इसीलिए जो है कई कई कंट्रीज में जो है एक से ज्यादा टाइम जोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उनका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो बहुत ज्यादा, यानी कि जो चौड़ाई है उस कंट्री की वो बहुत ज्यादा हो जाती है। और जैसे इंडिया है, इंडिया में जो एक ही टाइम जोन इस्तेमाल किया जाता है जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो कि 82.5 डिग्री पे सिचुएटेड है। क्लियर? उसी से जो है हमारा आगे पीछे जो है टाइम एडजस्ट किया जाता है हमारे कंट्री में, इंडिया में। तो अलग अलग कंट्रीज में पूरे वर्ल्ड में जो है ऐसे 24 ऐसे टाइम जोन बनाए गए हैं जो कि पूरे वर्ल्ड के टाइम कोऑर्डिनेट करने में मदद करती है ग्रीनविच से। ठीक है, अब एक बात याद रखना कि टाइम जोन में हमसे एक चीज याद रखना कि जो ग्रीनविच है उससे जो है अगर ईस्ट में जाते हैं तो टाइम वहां पे प्लस में होगा, और अगर वेस्ट में आते हैं तो टाइम जो हमारा नेगेटिव में होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो तुम्हारा ग्रीनविच है, ये तुम्हारा जीएमटी है, ठीक है, जो कि 0 डिग्री पे है, या फिर 0 डिग्री, ये प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, अब इधर हम लोग चले जाए वेस्ट की तरफ, तो जो भी यहाँ पे टाइम हो रहा होगा वो माइनस में चला जाएगा इधर, और जो वेस्ट ईस्ट में डायरेक्शन से, ये ईस्ट है हमारा, तो इधर जो भी हमारे टाइमिंग्स होंगे वो प्लस में होंगे। ठीक है, तो वो अब डिसाइड होता है कि कितने डिग्रीज पे जो है वो जो कंट्री है वो सिचुएटेड है। फॉर एग्जांपल हमने इंडिया की बात की, तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितने पे है? 82 डिग्रीज पे है। उसी तरह रशिया की कुछ और होगी, पाकिस्तान का कुछ और होगा, कनाडा का कुछ और होगा, यूएसए का कुछ और होगा। तो अब कनाडा यूएसए जो है, अफ्रीका का कुछ और होगा, तो कनाडा यूएसए जो है वो तुम्हारे वेस्ट डायरेक्शन से पड़ते हैं ग्रीनविच के, तो वहां पे जो टाइम है वो माइनस में चले जाता है। और वही हम आगे जाएंगे ईस्ट डायरेक्शन में, जो ग्रीनविच से इधर है ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, तो उधर तुम्हारा प्लस में टाइम चला जाता है। तो ये बस याद रखना कि ग्रीनविच से जो भी कंट्री ईस्ट में पड़ती हैं
जैसे यूरोप की कंट्रीज हो गई और तुम्हारे रसिया हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, तो जो भी कंट्री सारी ईस्ट में है, अफ्रीका हो गया, तो सारी ईस्ट में है कंट्रीज, तो उसमें जो है हमारा प्लस में टाइम जाता है, यानी कि हेड होता है। और वही अगर जीएमटी से जो हमारे पहले कंट्रीज हैं इस साइड में, तो उनमें जो है टाइम जो है नेगेटिव में चला जाता है, यानी कि वो पीछे चला जाता है हमारा टाइम। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर 4 बज रहा होगा, तो इन सारे कंट्रीज में 4 में से जो डिग्रीज पे सिचुएटेड होंगी टाइम जोन्स, यानी 15 डिग्री पे, मान लो कनाडा है तुम्हारा, कनाडा 60 डिग्री पे है, कनाडा तुम्हारा 60 डिग्री पे, एक टाइम जोन यहाँ पर है, एक टाइम जोन यहाँ पर है और एक टाइम जोन यहाँ पर है। तो यहाँ पे मान लो यहाँ से जो दूरी है ये इसकी पड़ती है 55 डिग्रीज, ठीक है। फिर यहाँ से आ जाओ तो यहाँ पड़ता है तुम्हारा 70 डिग्री, यहाँ पे आ जाओ तो 85 डिग्री। तो अलग अलग यहाँ पे टाइम कुछ और होगा, यहाँ कुछ और टाइम हो रहा होगा, यहाँ कुछ और टाइम हो रहा होगा, और 15 डिग्री यानी कि 1 घंटे के उपरांत वो प्लस होता रहता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया 82 डिग्री पड़ता है, तो कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटे आगे है। पाकिस्तान है 4 घंटे आगे। उसी तरह जो अफ्रीकन कंट्रीज है और जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज है, वो 1-1 घंटे के गैप में सारी इंक्लूड की जाती है और देखा जाता है कितने घंटे का गैप हो रहा है। क्लियर? तो आई होप आपको टाइम जोन समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस इतना याद रखना आपको कि जो कंट्रीज ग्रीनविच के ईस्ट में होती हैं उसमें जो टाइमिंग है +1 आवर ऐड होता रहता है, और जो कंट्रीज हमारी ग्रीनविच के हमारे वेस्ट साइड में है उनमें जो है 1-1 घंटे का माइनस होता चला जाता है। 15 यानी क्योंकि 15 डिग्री पे माना गया है, ये जो है 15 डिग्री माना गया, यानी कि 1 घंटे के टाइम पे माना गया है, तो 1-1 घंटे जो है माइनस होता चला जाता है। क्लियर? और टाइम जोन जो है 15 डिग्री के गैप में बनाए गए हैं, तो 1-1 घंटे का गैप जो है वो हमेशा चलता जाता है। तो आई होप आपको ये टाइम जोन जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये जो है ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ से इस चैप्टर को पढ़िएगा, और जो क्वेश्चन आंसर आपको मिल रहे हैं उसको सिंसियरली अपने फेयर बॉक्स में कीजिएगा। और कोई भी डाउट हो आपको तो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और आप लोगों से अनुरोध रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी वीडियो आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग जरूर लिखें और अपना नाम जो है मेंशन जरूर करें। उसी तरह अगर एंड कर रहे हैं वीडियो तो आप एंड जरूर कीजिएगा, वहां पे लिखिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपने वीडियो पूरा देखा है। और वीडियोस को जो स्किप करके मत देखिएगा, छोटे छोटे 20-20 मिनट की वीडियो है, तो आप कोशिश करिएगा कि पूरे वीडियो जो है एक साथ देखें, ताकि हम लोग आपसे कनेक्टेड रहें और आप हमसे कनेक्टेड रहें। ठीक है? और याद रखिएगा कि सैटरडेज को जो है आपका टेस्ट होगा, तो प्लीज आप जो है इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है? सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल स्टडी ट्रीट को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारा जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।